Very good morning, students. Today we'll be discussing about extrinsic semiconductor, right? Today we'll be discussing about extrinsic semiconductor. In the last class we have already discussed about intrinsic semiconductor, and from there we know intrinsic semiconductor means the semiconductor having no impurity. ठीक है, those semiconductors are pure and natural. उनका जो कंडक्टिविटी आता है वो इंट्रिंसिकली आता है, ठीक है, अंदर से उनका आता है. That's why those are called intrinsic semiconductor. But in case of extrinsic semiconductor we see impurity here. ठीक है, so ये जो extrinsic semiconductors है उसका necessity क्या है? Why extrinsic semiconductor are necessary? उसको पहले हम उसके बारे में बात करेंगे. Why extrinsic semiconductors are necessary. ठीक है, हर एक चीज को पढ़ने से पहले हमें उसकी नेसेसिटी के बारे में जानना चाहिए. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो हमारे पास था, तो फिर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों यूज किया? ठीक है, एक्चुअली उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज वेरी लो, राइट? इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, the electrical conductivity, right? The electrical conductivity even at room temperature is very low, right? Intrinsic semiconductor have very low electrical conductivity in room temperature also. ठीक है, room temperature means that is 27 degree centigrade around, right? तो रूम टेम्परेचर में भी आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी लो है. ठीक है, सो देयर इज ए नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो. ठीक है, सो दैट नीड इज फुलफिल्ड बाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि एक ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बनाते हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ना करे. ठीक है, सो उसके लिए उन्होंने क्या किया? दिस इज डन बाय एडिंग सम अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड impurities. Those substances that are added to the intrinsic semiconductor are called impurities. And after adding impurities to the intrinsic semiconductor, the intrinsic semiconductor becomes extrinsic semiconductor, right? So when a few parts per million of suitable when a few parts per million means ppm of a suitable impurity is added to the pure semiconductor, the conductivity increases many times. ऐसा देखा गया कि फ्यू पार्ट्स पर मिलियन मतलब आप 1,00,000 में भी एक इम्प्योरिटी अगर वहाँ पर ऐड करो, ठीक है, तो उसका जो कंडक्टिविटी 16 गुना बढ़ जाता है. ठीक है, ये देखा गया कि हम जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भीतर एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी कितना बढ़ रहा है? 16 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, सो अगर हम ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो द कंडक्टिविटी विल इंक्रीज मोर. ठीक है, दैट्स वाई वी यूज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सटेंसिवली. ठीक है, सच मटेरियल्स इन व्हिच वी पुट इम्प्योरिटी those are called as extrinsic semiconductor और impurity semiconductor. क्या बोलेंगे? extrinsic semiconductor और इसको बोलेंगे impurity semiconductor. ठीक है,
तो एक्सट्रिंसिक या फिर इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रोसेस हम अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डोपिंग। अच्छा, when some desirable impurity is added to intrinsic semiconductor deliberately, ठीक है, knowingly हम क्या कर रहे हैं, एक intrinsic semiconductor के अंदर, intrinsic semiconductor, this is an intrinsic semiconductor, we are adding desirable impurity, right? In this intrinsic semiconductor we are adding desirable impurity deliberately, right? Deliberately, जानबूझकर डाल रहे हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। अगेन आई एम सेइंग, when some desirable impurity, if impurity is added to intrinsic semiconductor deliberately, this process is called as doping, and the impurity atoms are called as the impurity atoms are called as what? Dopants. प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डोपिंग, एंड द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड एज डोपेंट्स, राइट? सो सच सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है, और उसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और वी कैन से इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। सच सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, doped semiconductors, right? So you know what do you mean by doping? एंड यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जो साइज ऑफ डोपिंग है, ठीक है, ये जो डोपांट का जो साइज है, द साइजेस ऑफ द डोपांट एंड द सेमीकंडक्टर आटम शुड बी नियरली द सेम, और नियरली, और वी कैन से दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है, सो दैट द डोपांट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस, बिकॉज सेमीकंडक्टर का आपको मालूम है दैट इज ए क्रिस्टल, ठीक है, एंड एवरी क्रिस्टल हैज ए साइज एंड शेप। तो यहाँ पर हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, द डोपांट्स, दैट शुड बी nearly equivalent to the size of the pure semiconductor atoms, right? If the size of the dopants will be more from the semiconductor atoms, then they can distort the original pure semiconductor lattice, समझ गए? That's why the dopants used here, the size of the dopants used here is nearly same as the semiconductor atoms, right? So a dopant occupies only a very few of the original semiconductor atom sites in the crystal. That's why we use dopants which are equivalent to the size of the semiconductor atoms. So there are two types of dopants. पहले देख लेते हैं types of dopants, ठीक है, types of dopants. There are generally we see two types of dopants. There are two types of dopants used in doping. First one is pentavalent atoms. Pentavalence atom का मतलब क्या है? Valency 5. The atoms having valency 5, those are called pentavalent atoms. For example, arsenic. In case of pentavalent atom, we use arsenic, and another one is antimony, which is termed as Sb, right? And another one is phosphorus. Everyone know phosphorus, right? So these are the three examples of pentavalent atom. The first type of dopant is pentavalent atom. Example are arsenic, antimony, and phosphorus, right? Each of them having 5 valency electrons, right? And the second type of dopant is called as trivalent atom. Trivalent atoms. Trivalent means the valency of the atoms
is 3, right? So some of the examples of trivalent atoms are indium, which is represented as In, right? Another one is boron, B, and third one is aluminum, Al. So there are three types of trivalent atoms, that is indium, another one is boron, and another one is aluminum, which are used as the dopants, right? So according to the type of dopants, there are also two types of semiconductor, right? The first one is n-type semiconductor, or we can say negative type semiconductor, or n-type. N means negative. एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर है दैट इज एक्चुअली न्यूट्रल, राइट? उसका नेचर जो है दैट इज न्यूट्रल, बट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, उसको बोला गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर. इन दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इज negative type semiconductor, but actually the overall charge is 0. The semiconductor act as neutral, right? तो देखेंगे उसको कि कैसे वो एक्चुअली एन टाइप सेमीकंडक्टर का काम करता है, ठीक है. तो इन दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर हम करते क्या है एक्चुअली, व्हेन एन इम्प्योरिटी आटम with 5 valence electron is doped to a germanium crystal, right? It replaces one of the germanium atoms. What happens in n-type semiconductor? The type of dopant we use is pentavalent atom, or we can say having valency 5. तो valency 5 वाला एटम का एग्जाम्पल है फॉस्फरस. मोस्ट वाइडली वी यूज फॉस्फरस, राइट? तो हम क्या करते हैं, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम डोपांट के हिसाब से या फिर इम्प्योरिटी के हिसाब से किसको यूज करते हैं, फॉस्फोरस को यूज करते हैं, ठीक है. तो जैसे कि आपको देखा गया है हमारा जो जर्मानियम का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये है आपका जर्मानियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस. यहाँ पर देख सकते हो सारे क्रिस्टल्स एक तरह हैं, ठीक है. तो यहाँ पर भी जर्मानियम है, यहाँ पर जर्मानियम, यहाँ पर जर्मानियम है, Ge, एंड हियर यहाँ पर एक्चुअली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जर्मानियम हुआ करता था, लेकिन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में हम क्या करेंगे, एक जर्मानियम को रिप्लेस करेंगे फास्फोरस से, ठीक है. तो जर्मानियम इज ए टेट्रावेलेंट एटम, है कि नहीं. यहाँ पर जर्मानियम का 4 इलेक्ट्रॉन है, हर एक जर्मानियम का आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. लेकिन आपका जो फॉस्फोरस है, ठीक है, उसका कितना इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. पहले हम ये 4 दिखा ले पहले. तो जैसे कि आपको जर्मानियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल. फास्फोरस का आपका एटॉमिक नंबर 15, तो कितना हुआ 2 8 5, ठीक है. बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना आ रहा है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो 4 जो फास्फोरस का जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, कोवैलेंटली बॉन्डेड टू द फास्फोरस नाइबरिंग, कोवैलेंट द फास्फोरस इलेक्ट्रॉन्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड टू द जर्मानियम आटम, ठीक है. नाइबरिंग जर्मानियम जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है ऐसे. ठीक, लेकिन उसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्डेड है, ठीक है. बट अनदर 1 इलेक्ट्रॉन हियर इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर दैट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन. समझ गए.
मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स विद द नाइबरिंग जर्मानियम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जर्मानियम आटम के साथ वो कोवैलेंटली बॉन्डेड हो गए, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन उसका रह गया जो फास्फोरस का, वो क्या करेगा, वो फ्री रह गया। ठीक है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये अभी तक कंडक्शन बैंड में नहीं गया है, ठीक है, लेकिन इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, वो किसके वजह से आ रहा है, ड्यू टू द कोर। ठीक है, ये जो फास्फोरस का कोर है या फिर फास्फोरस का न्यूक्लियस है, वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखा हुआ है। फिर भी ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ये फास्फोरस के पुल से आज़ाद हो सकता है अगर हम उसके कम फोर्स भी, अगर उसको एनर्जी देंगे, फिर भी वो आराम से आज़ाद हो सकता है। क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करना क्या पड़ रहा था, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा था। ठीक है, दैट्स वाई वी आर गिविंग मोर एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये ओनली फास्फोरस का जो न्यूक्लियर पुल है उससे आप बाहर उसको जल्दी निकाल सकते हो बाई गिविंग ए वेरी स्मॉल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है फॉर ईच डोपेंट। ठीक है, मतलब फास्फोरस का एक आटम आपने यहाँ पर डाला तो आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और भी फास्फोरस ऐड करोगे तो आपको उसी हिसाब से फास्फोरस का फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका बढ़ता जाएगा। तो जितना जितना आप डोप यहाँ पर डालोगे, जितना जितना इम्प्योरिटी आप यहाँ पर ऐड करोगे, उतने हिसाब से आपका फ्री इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, बाहर निकल कर आएंगे, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन आपका आएगा उतना आपका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, देखो बच्चों, कि फास्फोरस यहाँ पर जितना हम ऐड करेंगे उतना फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी रूम टेम्परेचर पर यहाँ पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर at 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पर दूसरा बॉन्ड भी क्या होता है, ब्रेक करता है। ठीक है, बहुत माइन्यूटली ब्रेक करता है। मतलब अगर हम यहाँ पर 100 फास्फोरस ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका कितना इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इन रूम टेम्परेचर आपको मिलता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भी, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ से मिलता है, फ्रॉम बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकेज से आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, और आपका जो 100 फास्फोरस आटम आपने इम्प्योरिटी के हिसाब से ऐड किया, वहाँ से आपको 100 फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, अगर कोई पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका कितना आ रहा है, 101 आ रहा है, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ डोनर आटम। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब डोनर आटम कौन है, ये फास्फोरस इज द डोनर आटम। तो डोनर आटम से हमको कितना फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट 100 फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू 101। टोटल आपको कितना मिल रहे हैं, 101, लेकिन वी कैन से कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नियरली इक्विवेलेंट टू द टोटल नंबर ऑफ डोनर आटम। समझ गए, आपका इम्प्योरिटी जितना बढ़े उसी हिसाब से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन उसके साथ आपका बॉन्ड ब्रेकेज से भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट ओवरऑली हम देखेंगे कि आपका जो टोटल इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ डोप्ड एटम्स। समझ गए, और द नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज वी आर एडिंग इन द एन टाइप सेमी कंडक्टर। समझ गए, तो यहाँ से देखो, अगर बॉन्ड ब्रेकेज से आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके साथ साथ एक होल भी आपका क्रिएट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको मिल क्या रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ डोनर आटम, और वी कैन से विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ से आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका नंबर ऑफ डोप्ड आटम के साथ ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, मतलब आप 100 आटम डोप कर रहे हो तो आपको 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है,
एक हर 100 आपका फ्री इलेक्ट्रॉन में एक फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, बॉन्ड ब्रेकेज से आता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 101 हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जो डोप्ड एटम कितना है 100, विच इज इक्विवेलेंट, ये जो 101 को हम लिख सकते हैं इज इक्विवेलेंट टू 100, है कि नहीं। लेकिन अगर होल की बात करें तो देखो हर 100 आपका जो डोप्ड एटम में आपको एक होल मिल रहा है ड्यू टू द बॉन्ड ब्रेकेज, ठीक है। यहाँ से आपको होल नहीं मिलता है इम्प्योरिटी से, आपको बॉन्ड ब्रेकेज से होल मिल रहा है, ठीक है। तो हर 100 में एक होल, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डोप्ड एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपका जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर है, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर electrons which are negatively charged, ठीक है। और माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर कौन है, माइनॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर होल्स which are पॉजिटिवली चार्ज, समझ गए। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है आपका इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया सबको कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर जो इम्प्योरिटी है आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है आपको जर्मानियम को, दैट्स व्हाई द इम्प्योरिटी here the atoms used here as dopants called as donor atoms because they donate electrons to the germanium atom, right। अच्छा यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर Ni is the density of electrons or we can say holes in a pure semiconductor or intrinsic semiconductor, इसको हम क्या बोल रहे थे, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन भी बोल रहे थे, याद होगा आप लोगों को लास्ट क्लास में, इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन, राइट। Ni को हम क्या बोल रहे थे, इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन विच वाज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दैट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ होल्स इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। तो उनके बीच का जो रिलेशन है Ne, उनके बीच का जो रिलेशन है दैट इज NeNH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रिलेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू remember it. Ne is the number of electron per unit volume, NH is the number of holes per unit volume, and Ni is the intrinsic concentration. समझ में आ गया। Now we will move forward to P type semiconductor. P type, positive type semiconductor. In N-type semiconductor, the dopants used were pentavalent in nature, but in case of P-type semiconductor, we use trivalent impurity or the dopants, right। So when we use trivalent impurity to a germanium crystal, right, see what happens actually, यहाँ पर देख सकते हो, this is the crystal structure of the germanium, Ge, दिस इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ पर हम करते क्या हैं, जर्मानियम का बदले हम क्या करेंगे, एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, ठीक है। लेट
द एल्यूमिनियम इज ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 13, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होगा 283, तो 3 इज द 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर देखो, जर्मानियम का हर एक जर्मानियम का कितना टेट्रावैलेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे करके जर्मानियम का 4 इलेक्ट्रॉन्स हर तरफ से आएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन एल्यूमिनियम का कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो पहले ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्डेड कर लेते हैं, ठीक है। जर्मानियम का सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं, ठीक है। हो गया। तो देखो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेकिन चाहिए क्या, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वैकेंट हो रहा है, ठीक है। सो एट दैट वैकेंट पोजीशन ए होल इज क्रिएटेड, ठीक है, देख रहे हो। तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका क्या हो रहा है, ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक वैकेंट पोजीशन आपको मिल रहा है, ठीक है। दिस वैकेंट पोजीशन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो जर्मानियम का पास वाले जर्मानियम का जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए नीचे आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड एक ब्रेक किया और दूसरा बॉन्ड क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर नहीं बोल सकते आप कि यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ है, क्योंकि एक ब्रेक हो रहा है तो आपका दूसरा बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का यह पोजीशन था, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, ठीक है। तो होल क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। होल कहाँ पर क्रिएट होगा, अभी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज वी कैन से देयर इज ए शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी कैन से अपैरेंट शिफ्ट ऑफ द होल्स, ठीक है। यहाँ पर लोग साइट 1 था तो साइट 2 पर आपका होल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ होल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने की बात क्या हो रहा है कि जितना आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे, ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को आप ऐड करोगे उतना आपका होल फॉर्मेशन होगा, समझ गए। The 4 germanium atoms surrounded by the impurity atom can share 1 electron each with impurity atom, and that impurity atom क्या करेगा, robs 1 electron from nearby covalent bond and the valence shell of the impurity atom gets completed but a hole is created, ठीक है, in the covalent bond from which electron has been robbed। यहाँ पर देख रहे हो ये जो होल बन रहा था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या क्या चोरी किया, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चोरी करके ले आया, तो यहाँ पर आपका होल फॉर्मेशन हो गया। तो शिफ्टिंग ऑफ होल्स इज देयर। सो दस फॉर एवरी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आटम वी एडेड हियर एन एक्स्ट्रा होल विल बी क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पर और एक एल्यूमिनियम ऐड करेंगे, यहाँ पर और एक एल्यूमिनियम ऐड करेंगे, तो हर एक जगह आपका एक एक एक्स्ट्रा होल आपका क्रिएट होगा, ठीक है। as the trivalent atoms accept electrons from the germanium crystal, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर उसका होल था, तो ये किसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका नाइबरिंग जर्मानियम आटम का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एन टाइप में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन वो दे रहा था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, उसी के लिए बोला गया था डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है। अब इसे अब क्या बोला जाएगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोला जाएगा, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है वो जर्मानियम आटम का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो द जर्मानियम क्रिस्टल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज पी टाइप, क्योंकि यहाँ पर हम पी टाइप क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होल है, ठीक है, दैट इज बाई नेचर पॉजिटिव, ठीक है, अपरेंट पॉजिटिव चार्ज वो कैरी करता है, तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या बोलेंगे,
इस जर्मानियम क्रिस्टल को पी टाइप जर्मानियम क्रिस्टल और पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। समझ गए। यहाँ पर देखो उसी हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट के वजह से होल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जब भी हम टेम्परेचर ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर वी कैन से एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकेज हो सकता है, ठीक है। सो ड्यू टू द बॉन्ड ब्रेकेज एक तो होल आपको ऐसे इम्प्योरिटी से मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको बॉन्ड ब्रेकेज से भी आपका कितना क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बॉन्ड ब्रेकेज से आपको क्या मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस होल, ठीक है, और आपका जो इम्प्योरिटी है वहाँ से भी आपको क्या मिल रहा है, होल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होल ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज आपका इम्प्योरिटी से होल मिल रहा है। आप जितना इम्प्योरिटी ऐड करोगे, 100 इम्प्योरिटी ऐड करोगे आपको 100 होल मिलेगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकेज उसके हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। 100 इम्प्योरिटी में एक बॉन्ड ब्रेकेज होता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड से आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल मिलेगा, लेकिन आपको 100 इम्प्योरिटी अगर ऐड करोगे तो आपको यहाँ से 100 होल मिल रहे हैं। तो टोटल होल कितना हो रहे हैं, 101। फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो रहे हैं, 1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और आपका जो होल है, ठीक है, उनके भीतर कितना अंतर आपको पता चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो उनका रेशियो होगा तो नंबर ऑफ होल विच विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। जितना एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आप डालोगे उसका देखो टोटल नंबर ऑफ होल उसके आसपास ही आएगा, समझ रहे हो, एंड दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम जनरली देखते क्या है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो द क्रिस्टल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज पी टाइप because majority charge carriers are assumed to be holes which are assumed to be positively charged, but the crystal as a whole, ठीक है, बट अगर हम क्रिस्टल की बात करेंगे, क्रिस्टल as a whole remains neutral, ठीक है, while dopant atoms themselves becomes ionized negative core। तो ये हो गया आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। क्वेश्चन जैसे दिया गया है आपका, प्योर सिलिकॉन at 300 K has equal electron Ne and hole NH, concentration of 2 into 10 to the power 16 per meter cube. Doping by indium increases NH to 4 into 10 to the power 22 per meter cube. Calculate Ne in the doped silicon, राइट। तो यहाँ पर फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमारा जो रिलेशन था Ne और NH के भीतर एंड Ni के भीतर, दैट वाज लाइक दिस, Ne into NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ठीक है।
तो हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, कैलकुलेट Ne इन डोप्ड सिलिकॉन, ठीक है। तो Ne कितना होगा, Ni² बाई NH, है कि नहीं। तो Ni कितना दिया गया है देखो प्योर सिलिकॉन का इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल है, ठीक है। प्योर सिलिकॉन का केस में हम क्या जानते हैं, Ne इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, ठीक है। तो यहाँ पर Ne जितना होगा या फिर NH जितना होगा Ni भी उतना ही होगा। तो NH कितना दिया गया है, 2.2 इंटू 10⁻16। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 10⁻16 होल स्क्वायर, ठीक है। और NH आपका कितना दिया गया है डोपिंग होने के बाद, 4 इंटू 10⁻22, ठीक है। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 1 इंटू 10⁻10 पर मीटर क्यूब, राइट। दिस विल बी द number of electrons in the doped silicon. So students, I think you have understood well about the today's topic. If you have any doubt then you can ask me. Thank you for watching. Have a nice day.